You guys got aired on Shark Tank and you got an investment from three sharks. One more thing that Ritesh Agarwal highlighted you guys as OYO for school. Yeah. Last week, Niti Aayog released a report according to which India has almost 15 lakh schools, in which 11 lakh schools are government schools. Still, 52% of the India's population is going to private schools. More than 1 lakh schools have only single teacher. Okay. They have to manage at least 5 classes. Niti Aayog says like grade 5 students cannot read the text, like almost 60% of them cannot read the text of 3rd and 4th grade. तो हम लोगों ने एक मॉडल फिगर आउट किया जिसको हम लोग 500 रुपीज स्कूल मॉडल बोलते हैं। 500 रुपये आज की डेट में एक ऐसा अमाउंट है जो बच्चे की एजुकेशन पे कोई भी पेरेंट बड़े आराम से खर्च कर सकता है। But एक बहुत major backdrop है when it comes to education in India, especially for girls. Girls enrollment versus girls retention. एक लड़की को फर्स्ट क्लास में आप करवा तो सकते हैं एडमिशन, फिर उसे 8th तक लेके जाना है, फिर 8th से 12th तक लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज व्हेन शी इज इन अ रूरल टाउन और एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में होती है तो देयर आर सो मेनी सोसाइटल एस्पेक्ट्स जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सो हाउ डज कोग्रैड मेक श्योर कि वो ड्रॉप आउट रेट इन गर्ल्स इट डिक्रीजेस इन इंडिया? Thank you so much for sitting down for this podcast, Himanshu. It's absolute honor hosting here with the Founders Times, and you're doing amazing with Kograd. And I have seen all the LinkedIn posts as well, the social media celebrations. But I want to know who you are beyond Kograd, the founder, Himanshu himself. So I claim myself as a learner. Okay. So from the very beginning, I learn a lot from the people. Coming from a tier 3 background, so I come from Farrukhabad. I've been like the founding team. The Saurabh is also from Etawah. We both are from a tier 3 background. Okay. And we completed our schooling from there only, from Navodaya Vidyalaya. And later on, we both pursued, like he was into Delhi University, I was into NIT Allahabad. And there we learnt a lot. During like our course of learning, we figured out a lot of things that there's a huge gap between like the people coming from tier 3 backgrounds versus people coming from mega cities. So like in the initial years of our college days, we decided to work to bridge this particular gap. And for that we started Kograd while we were in college. Oh, that's amazing. So it was a very like tedious journey for us because our parents were not very much familiar about it. Even the society nearby was not very much familiar about it. So as a person, we both are learners, we both are entrepreneurs. So as like in entrepreneurship, we love thrill a lot, we love chaos a lot. So we are working for the social cause. That's great. And the name Kograd itself is quite distinctive. So I want to know what's the mind behind that, and how did you come up with the brand name called Kograd? Okay, so there are two things why we came up as a Kograd. Like initially when we thought that the thought was around that we want to do something innovative and affordable for the sake of rural and tier 3 students. And for that there are many people who have become successful even after coming from that particular background. Absolutely. And it is the high time where those particular people should reflect back and contribute back to the society. So we thought the term as connecting grads. We'll serve as a channel where we would be connecting those grads, the successful people who can contribute back to the villages, back to the society. So we came up as a connecting grads as a complete acronym. So for that earlier we were doing a counseling thing, so the name was Counseling Gurus. The domain name was so long people were unable to write it up properly. From that particular learning, one of our mentor told us that your domain name should not be 6 letters, like longer than 6 letters. So we combined both of it and we named it as Kograd. And Kograd was very unique name. Even we have to spend very less on the SEO part.
If you simply search co-grad, it will reflect on the top Absolutely, part. I did that. Yeah. That's amazing. But when we speak about you're trying to channelize a gap, there was a bridge. You said that there's a vacuum, right? So when we speak of this vacuum, there are so many teachers. But speaking of Uttar Pradesh itself, there are 9,500 plus teachers. But the problem is these teachers single-handedly, take care of from class 1 to 8 itself. Yeah. So, what is something that you found out that is the major issue for which CoGrad is working right now? Because you have been inside these schools, you have seen them. What is the condition right now, and how is CoGrad working for it? Okay. So last week Niti Aayog released a report according to which India has almost 15 lakh schools, in which 11 lakh schools are government schools. Almost 60-70% schools are government schools, and rest 4 lakhs are around the private schools. Still, 52% of the India's population is going to private schools, Okay. and more than 1 lakh schools have only single teacher. Okay. They have to manage at least 5 classes. Wow. So the distribution of manpower, the distribution of resources is very uneven. There are schools which have very high number of resources. Like suppose I'm a student in Delhi, my school has AC bus, I have a robotic lab, I have an AI lab, there are art teachers, there are multiple sort of coaches who are coming to teach me, guide me. And on the other hand, I am a student in like Bhind, Morena, or some district that are very rural, where there is no electricity, no power, no proper electric supply. And the teacher has to travel 30-40 kilometers to reach out to the school, and in that particular village we have 50 children, and a single teacher is teaching all those children. So that's why the learning outcomes of our society is very poor. Niti Aayog says like grade 5 students cannot read the text, like almost 60% of them cannot read the text of 3rd and 4th grade, cannot solve a simple numerical problem. That's why the FLN, the Foundational Literacy and Numeracy thing, was launched by Government of India. So while working in those particular areas, we saw that that the government is not only responsible to bring the change, because it's a very systematic change. Absolutely. And youth like us who have been through those particular realms, and the time has come to go back to there and build good systems, build models like CoGrad, where the student can come to school, the parent can send their child at very affordable levels. Because in India, if you just look at the CSR, it is as mammoth as 18,000 crore rupees of CSR is there. And I couldn't find like any rare kind of CSR company that has reached out to those remote areas, those underprivileged community. But at the same time, they are working in the peripheries of metro cities. Around Delhi, you can find thousands of NGOs who are working for slum kids, who are working for the kids here. But 15-20 crore students are still there in villages. So there is a need of development of proper systems, be it on the side of government, be it on the side of entrepreneurs like us. But it is much required to achieve the vision that we are chasing. So that is some crazy facts that we actually just learned about the government itself and how it's working, and most importantly on the part of the learners as well, because we are we are raising a generation that's going to change the destiny of the country in coming years, and you cannot play with their future. Absolutely. And CoGrad, so the model of your venture is actually leasing schools that were abandoned, right? So walk us through the entire process, how you actually work through it. Okay. So I am switching to हिंदी ताकि आपकी जो ऑडियंस है उसको ज़्यादा बेहतर समझ में आए. CoGrad का अगर आप कोर मॉडल या कोर फिलॉसफी देखेंगे तो हमारा है कि हर बच्चे तक अपॉर्चुनिटी पहुँचे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी पे सबका हक है.
दूसरा हम लोगों ने जो मॉडल क्रिएट किया इसके अराउंड पे, एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम लोग बेहतर से बेहतर स्कूल खोलें। एक स्कूल खोलने के लिए आपको लगभग 5 बीघा ज़मीन चाहिए, फिर आप उस पर कंस्ट्रक्शन करोगे तो इट गोज़ अराउंड आपको 2-3 करोड़ का खर्चा एक स्कूल खोलने में लगेगा, फिर उसके ऑपरेशनल कॉस्ट अलग है। बट इंडिया में अभी 86,000 से ज़्यादा स्कूल्स बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं। अच्छा। जिनको खोला स्कूल की तरह गया था बट वो किसी भी कारण की वजह से नहीं चल पाए सही से। तो अगर बिल्डिंग्स अवेलेबल हैं तो हमको नई बिल्डिंग क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो व्हाट वी डू, अगर आप सपोज आप ही हैं, आप स्कूल खोलोगे तो आपने पूरे आइदर किसी के नाम पे खोला होगा, है ना, अपने किसी पेरेंट्स के नाम पे, दादी के नाम पे, है ना, गांव में अक्सर लोग यही करते हैं। प्लस आपकी एक सोशल इमेज भी उससे जुड़ी हुई है। तो अगर वो स्कूल बंद हो जाता है तो इमेज भी टार्निश होती है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम लोग ऐसे स्कूल्स को फाइंड आउट करते हैं, उनको हम लोग लीज पे लेते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, अलग अलग ड्यूरेशन होती है उसमें। उनको लीज पे लेने के बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। जो उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो स्कूल वाले करके हमको दे देते हैं। नाउ द मेजर थिंग कम्स अप कि अब स्कूल को अच्छे से कैसे चलाना है। तो हम लोगों ने एक मॉडल फिगर आउट किया जिसको हम लोग 500 रुपीज़ स्कूल मॉडल बोलते हैं। 500 रुपये आज की डेट में एक ऐसा अमाउंट है जो बच्चे की एजुकेशन पे कोई भी पेरेंट बड़े आराम से खर्च कर सकता है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कैसे फ़ीस ये पॉसिबल हो पाती है 500 रुपये हर इंसान के लिए। तो अब 500 रुपये में हम देते क्या क्या हैं। 500 रुपये में आपको नर्सरी से लेकर के 10th क्लास या 12th क्लास तक की एजुकेशन मिलती है, एवरेज फीस। इसमें जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020 में, उसका जो फ्रेमवर्क आया है उसके हिसाब से हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने टीचर्स को ट्रेन किया हुआ है। अभी क्या हो रहा था कि गांव में सपोज़ 200 बच्चे रहते हैं तो 200 में से 20 से 50 बच्चे शहर जाते हैं डेली, वहाँ से वापस आते हैं पढ़ के, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होता है। हमने क्या किया, हम लोग शहर से 10, 15, 20 जितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं उनको हम गांव तक लेकर के आ गए। अच्छा, ठीक है। अब वो टीचर्स क्योंकि वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेंड हैं, तो वो गांव के बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा पाते हैं। सो यू आर सेइंग कि आप अर्बन सिटीज से यू आर पिकिंग अप दीस टीचर्स, जो भी नियर बाई टाउन एरियाज है। अच्छा, हम okay. पास के गांव से भी पढ़े हुए लोग लेते हैं, बट जो हमारा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चे आपके पढ़ाने से ज़्यादा आपके बिहेवियर से सीखते हैं। आप कैसे बात करते हो, आप कैसे कपड़े पहनते हो, ठीक है। तो गांव में दे इज़ लाइक जो उनकी बोली है, लाइक आई सल्यूट टू देम, आप अपना कल्चर इंटैक्ट रखिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमको बच्चे को प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी रेडी करना है, ठीक है। सो उनकी स्पोकन इंग्लिश, उनकी बोलने चालने की तरीके, उनके बैठने का, खाने का तरीका शुड बी लाइक फॉलो सम स्टैंडर्ड्स जो हम चाहते हैं हमारे सिटीजन्स के अंदर। सो इस तरह से हम लोग स्कूल में बेसिक नीड पूरी करते हैं। फिर इसके साथ में, क्योंकि इतना पढ़ा करके वो बच्चे वो गैप फुल नहीं कर सकते जो इतने सालों में क्रिएट हुआ है, नाउ द थिंग कम्स अप कि टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, तो हम उन बच्चों को कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर सिखाना, रोबोटिक्स लैब में रोबोटिक्स सिखाना, VR लैब में VR के थ्रू नई चीज़ें दिखाना, है ना, आपका 3D एनिमेशन। So you're bringing modernization to the rural cities itself. Wow. क्योंकि बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रिज जो उस गैप को पूरा कर सकता है। बिल्कुल। तो बिकॉज वी आर टेक्नोक्रेट्स, हमारी टीम में अच्छे खासे नंबर ऑफ पीपल हैं जो टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं, उसकी लेवरेज जानते हैं कि कैसे हम लोग गांव के बच्चों को अगर टेक्नोलॉजी सिखा पाए तो वो अपनी ज़िंदगी में कितना बेहतर कर पाएंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसे आपने इसमें भी 2 पॉइंटर्स बहुत अच्छे बोले, एंड आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट। फर्स्ट इज 500 रुपीज़ वाला पॉइंट, दैट यू प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स इन 500 रुपीज़, बट देर आर सम पीपल आउट देयर। पहले तो ये बहुत एक आउटरेजियस कॉरिलेशन है फॉर NGO वर्कर्स एज वेल, क्योंकि गवर्नमेंट अगर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करिए विद मिड डे मील्स, बट
then NGO workers are also out there, right? But if somebody is only earning 5,000 rupees a month, उसके लिए 500 rupees एक बहुत बड़ा bet भी है, plus उसके लिए वो एक priority नहीं है. When it comes to rural people, I think their priorities are survival and their basic needs. What you are offering is something might be outrageous for them. So what's your comments on that? So आपने 5,000 रुपीज़ तो बहुत ज़्यादा बता दिया. अच्छा. मैं थोड़ा आपके फैक्ट्स करेक्ट करता हूँ इसमें. Okay. मान लीजिए मैं कोई काम नहीं करता हूँ, ठीक है, स्टिल, और मैं गांव में रहता हूँ, तो मनरेगा या जिसका अभी नाम राम जी हो गया है, ठीक है, उसमें हर एक फैमिली को इंश्योर किया जाता है कि आपको 100 डेज़ का काम मिलेगा और उस 100 डेज़ के काम के अगेंस्ट में उनको 40,000 रुपये साल का मिलेगा, ठीक है. इसका मतलब वो लगभग 3-3,500 रुपये उनके पास महीने का एवरेज इनकम आएगी. आई एम टॉकिंग अबाउट द बिलोएस्ट पीपल, ठीक है. अगर कोई मनरेगा में जो काम कर रहा है उसके 3 टेंशन होते हैं, रोटी कपड़ा मकान. बिल्कुल, है ना. अगर मैं इतने बिलो लेवल पे हूँ तो मेरे अगर ये 3 चीज़ें सॉर्ट हो जा रही हैं तो मैं चौथी चीज़ की बात करूँगा, शिक्षा या एजुकेशन, कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है. तो सबसे पहले रोटी इज़ लाइक कि फूड कहाँ से आएगा. फूड सरकार 80 करोड़ लोगों को दे रही है ऑलरेडी, तो देयर इज सफिशिएंट फूड. इंडिया इज फूड सरप्लस कंट्री, ठीक है. देन कपड़ा कम्स अप. इस प्रोडक्शन लेवल पे आने के बाद जो बेसिक क्लोथिंग नेसेसिटीज़ हैं वो बहुत ही आराम से पूरी हो जाती हैं. थर्ड थिंग कम्स अप मकान, ठीक है. अगर कोई गांव में रह रहा है, गांव के लोगों के पास उनकी स्पेसेस हैं, उनके पास ज़मीन ही है. मेजर चीज़ तो उनके पास जो है वो ज़मीन है, तो उनके पास रहने की भी सिक्योरिटी है. अगर मैं और आगे बढ़ता हूँ तो हेल्थ इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की फैक्टर जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट हो जाता है. उसके लिए भी गवर्नमेंट ने आयुष्मान कार्ड दे रखा है उनको, ठीक है. तो उनके ये की चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं. अब अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने, और मेरे पास 3 बच्चे हैं पढ़ाने के लिए, और मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, तो मैं डेफिनेटली 1,500 रुपये महीने के तीनों बच्चों पे खर्च कर सकता हूँ. स्टिल मेरे पास 2,000 रुपये की सेविंग हो जाएगी जिसमें मैं अपने डेली कोर्स कर सकूँ, है ना. लेकिन गांव में स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो केवल ये लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की मैंने बात की आपसे. जनरल अगर आप देखोगे डेली वेज लेबरर्स भी हैं तो महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, ठीक है. आपके जो लोग माइग्रेट होकर के शहरों में आकर के काम कर रहे हैं, अपने नोएडा में, गुड़गांव में, जितने भी हैं सब आसपास के शहरों से आए हुए लोग हैं. उनकी फैमिलीज आज भी वही हैं. उनके बच्चों के पढ़ाने की कौन बात कर रहा है, ठीक है. बहुत सारे लोग जो आपके आर्मी में हैं, ठीक है, हाँ जी, है ना, वो गांव से आते हैं. हाँ, उनके बच्चों को पढ़ाने की कौन बात कर रहा है. जो किसान है, जिनकी जो वहाँ पे किसान का मतलब अपना खेती हारी करके और फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनके बच्चों को पढ़ाने की कौन बात कर रहा है. तो वहीं पे कोग्रेड आता है कि आपको कहीं अपने गांव से निकल के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको वहीं पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. That's amazing. So this was very core and very great information that you just gave. But एक बहुत major backdrop है when it comes to education in India, especially for girls. गर्ल्स इनरोलमेंट वर्सेस गर्ल्स रिटेंशन. एक लड़की को फर्स्ट क्लास में आप करवा तो सकते हैं एडमिशन, फिर उसे 8th तक लेके जाना एंड फिर 8th से 12th तक लेके जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज व्हेन शी इज़ इन अ रूरल टाउन और एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में होती है तो देयर आर सो मेनी सोसाइटल एस्पेक्ट्स जो से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. सो हाउ डज कोग्रेड मेक श्योर कि वो ड्रॉप आउट रेट इन गर्ल्स इट डिक्रीजेज इन इंडिया? इसका देखिए, जो कोग्रेड या जो स्कूल में गर्ल्स का ड्रॉप आउट रेट है, उसका अगर हम की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, दैट वाज एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, पहले देयर वर ऑर्थोडॉक्स थिंग कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे. फिर लगातार, लेकिन पास्ट फ्यू डिकेड्स अगर आप देखोगे तो विमेन आर लीडिंग द फैमिलीज, है ना. अभी गाँव में भी आप देखो तो दे टेक डिसीजंस लाइक इट्स द इक्वल नाउ. लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं, दैट ये फीलिंग अब आ गई है. लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है, ये चीज़ आज भी प्रिवेल करती है. वी वर्क इन दैट पार्ट. वो उसको जाते जाते थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं. नाउ द थिंग्स कम अप
कि क्या मेरे घर के पास में स्कूल है, क्योंकि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो किसी लड़की को स्कूल जाने में इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। लाइक देयर सोसाइटियल थिंग्स, ठीक है। आपके गांव का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कास्टिज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। आपका स्कूल कितना दूर है, ठीक है, रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं ना वहाँ पे। अगर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो जो लोग, कई बार लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उस चीज़ को। तो ये सारे चैलेंजेस थे। तो हमने सबसे पहले किया कि अगर कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, आप देखोगे तो प्राइमरी एजुकेशन अभी गर्ल्स भेजते हैं, क्योंकि हर गांव में एक स्कूल अवेलेबल है। जो आपने मिड डे मील और जो गवर्नमेंट स्कूल की बात करी, हर गांव में अवेलेबल है। तो 5वीं क्लास तक तो बच्चे पढ़ ले रहे हैं, बट क्या वो सच में पढ़ पा रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। दे आर गोइंग टू स्कूल, दैट इज़ लाइक गुड थिंग। फिर पहला ड्रॉप आउट आपका आना चालू होता है 5th के बाद से, क्योंकि कंपोजिट स्कूल्स उससे कम अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम आते हैं हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन पे, वो और कम अवेलेबल है, तो वहाँ पे और ज़्यादा ड्रॉप आउट्स आते हैं। 10th के बाद 20% से ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हैं, जिसमें मेजरली गर्ल्स हैं, जिसका केवल और केवल रीज़न ये है क्योंकि स्कूल एक्सेसिबल नहीं है। अब जब कोग्रेड किसी गाँव में जा कर के स्कूल खोलता है, तो नंबर 1 हम फोकस करते हैं कि आपकी जो एक्सेसिबिलिटी वाला फैक्टर है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर मेरा इंटेंशन है कि मैं अपने बच्चों को, मतलब गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, व्हाटसएवर इट इज़, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, नाउ इट इज़ इन माई विसिनिटी, मैं आराम से भेज सकता हूँ। सेकेंड थिंग कम्स अप कि स्कूल जाके करोगी क्या, ठीक है। अगर वहाँ पे स्कूल में सच में कोई चीज़ हैपनिंग हो रही होती तो एक बार को वो भेजते, ठीक है, कि हाँ उससे निकल कर आ करके आप कुछ करोगे, ठीक है। वो बहुत रेयर केस में पॉसिबल हो पा रहा था। गांव में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं अपने सोसाइटी से या मैं अपने मोहल्ले से निकल के एंटरप्रेन्योर बना, तो मेरे आसपास के लड़कों में या जो भी लड़कियां हैं उनमें ये आया कि हाँ अच्छा ये चीज़ करा जा सकता है। अदरवाइज उनको लगता है कि दिल्ली वाला ही इंसान ये चीज़ कर सकता है, कि उन्होंने टीवी पे ही देखा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो सेम गोज़ विद अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो जब उनके पास एक्सेसिबिलिटी आई, फिर पेरेंट्स को लगातार फीडबैक आ रहा है कि हाँ आपके बच्चे ऐसा 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 परफॉर्म कर रहे हैं, आप इनसे कैरियर में ये चीज़ें करवा सकते हैं जो चीज़ें पहले वहाँ पे नहीं थी। हम प्रॉपर गाइड करते हैं कि आप, काउंसलिंग होती है प्रॉपर। 10th के बाद क्या करोगे, कैसे चुनोगे, 12th के बाद कहाँ जाओगे, ये क्या बन सकता है बच्चा, ठीक है। सो पेरेंट्स इन्वेस्ट तभी करते हैं उनमें, ठीक है। नाउ जब हम लोगों ने ये सारी चीज़ें करना चालू किया, तो पेरेंट्स को धीरे धीरे हमारे ऊपर ट्रस्ट आने लगा। ये फिर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जब हम बच्चों को टूर पे लेके जाते, जब हमने स्टार्ट किया था, तो हम लोग अपने व्हीकल से लेकर के जाते थे कुछ सिलेक्टेड बच्चों को। टू मेंटेन जेंडर इक्वलिटी, हम लड़कियां लड़कों को बराबर लेकर के जाते थे। गांव में ये हमारी खुद की ऐसी धारणा थी कि पेरेंट्स नहीं भेजेंगे अपनी बच्चियों को हमारे साथ में कहीं पे। क्योंकि लखनऊ ले जाना है, दिल्ली ले जाना है, कहीं पे ले जाना है। हमने वहाँ पे देखा कि ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अच्छे टीचर, अच्छे एजुकेटर हो, तो पेरेंट्स आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। वाओ, ठीक है। बच्चे हमारे साथ सुबह 6 बजे से लेके रात के 2-2 बजे तक रहे हैं, गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, बोथ। एंड पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, इवन हमारे टीचर्स पे ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो ट्रस्ट जब एक बार बन जाता है, जब उनको विजन दिखाई देने लगता है, अगर आप पेरेंट्स को विजन दिखा पाएँ कि अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या कर सकता है, तो जो जितने भी ये ड्रॉप आउट्स होते हैं या किसी भी कारण की वजह से होते हैं, वो सब धीरे धीरे खुद से कम हो जाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर जो था एक्सेसिबिलिटी, उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है विजन, उसको हम करेंगे। तो ये जो विजन आपने बताया, जैसे कहते हैं कि एक होता है ना, एक टीचर होता है, मुश्किल ये नहीं होता कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है, मुश्किल ये होता है कि जब एक टीचर प्रेजेंट होके भी सोच रहा है कि मैं बच्चे को और क्या पढ़ाऊं, राइट। सो वहाँ पर जब आप विजन देख रहे हैं, जो आपका विजन है, जो आप पेरेंट्स को भी दिखा रहे हैं, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट विजन इन टीचर्स जो कोग्रेड के साथ जुड़ेंगे,
how do you provide those students with good teachers whom actually parents can trust? ओके ये इसके लिए आपको देखिए, टीचर्स अगर इंडिया में देखेंगे तो पीपल जनरली चूज इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट. Absolutely, backup plans. बैकअप प्लान होता Yeah. है लोगों का टीचर बनना. रियली मतलब बहुत अच्छे टीचर. It is a sad fact. It is इट्स अ true. सैड फैक्ट. वहीं पे अगर आप भूटान में देखेंगे तो भूटान में हाईएस्ट पेड सैलरी टीचर की होती है. ठीक है, दे आर द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज. तो जब हमको टीचर्स मिलते हैं तो जनरली दे आर वेल वर्स विद देयर सिलेबस. ठीक है, मोटिवेशन का लेवल अलग अलग होता है सब में. ठीक है, तो सबसे पहले हमको उनको ये समझाना होता है कि हम लोग को ग्रेड गांव में क्यों आया है. हम चाहते तो हम एमएनसीज में काम करते, बढ़िया लाइफ अपनी जीते और सुकून भरी ज़िंदगी होती है, हमारी फैमिली भी चिल होती है एकदम. तो सबसे पहले हम अपना विजन उनके में ट्रांसफॉर्म करते हैं कि आप क्यों ज़रूरी है गांव में पढ़ाना. फिर हम टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग करवाते हैं. ट्रेनिंग या आप बोल सकते हैं इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स थ्रू प्रेसिडेंट अवॉर्डी टीचर्स. तो वी हैव अ पूल ऑफ 600 प्रेसिडेंट अवॉर्डी टीचर्स. एक फोरम है पूरा. वो हमारे टीचर्स, वैसे लेवल के टीचर्स हमारे टीचर्स को गाइड करते हैं कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्लासरूम कैसे बेहतर होती है. थर्ड थिंग, हम लोगों ने एक टूल बनाया है, एक इंडिया का पहला एआई बनाया है टीचर्स के लिए. जैसे मान लीजिए मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरे पास क्लाउड कोड है, कर्सर है. मैं डॉक्टर हूँ तो मेरे पास अपने खुद के सॉफ्टवेयर हैं, है ना. मैं किसी और प्रोफेशन में हूँ, सपोज आप पॉडकास्ट या आप कंटेंट के फील्ड में हो, आपके पास टूल्स हैं, एआईज हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं. टीचर के पास क्या है? ठीक है, तो टीचर को, हाँ, तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं ना कि वो तो देवता इंसान है, वो तो खुद से सब कुछ सीख लेगा, है ना. बिल्कुल. वो किसी को इतना भी पूजनीय नहीं बनाना होता है. बिल्कुल. तो हम लोगों ने उनके लिए, उनकी ज़िंदगी को आसान करने के लिए मेधा एआई बनाई कि आप एनईपी इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, एनसीएफ 600 पेज का डॉक्यूमेंट है. ठीक है, उसको ग्रेस करना, उसके हिसाब से सारी चीज़ें जनरेट करना, और जिस लेवल पे इंफॉर्मेशन चेंज होती चली जा रही है, पढ़ाने के तरीके चेंज होते चले जा रहे हैं, वो सब चीज़ें कर पाना बहुत हेक्टिक टास्क है. Absolutely. तो क्यों ना उनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करें. सो वी गिव देम रिसोर्सेज. नंबर 1 इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग, नंबर 2 इज़ रिसोर्सेज. फिर हम उनको मार्केट स्टैंडर्ड से ज़्यादा सैलरीज और ज़्यादा पर्क्स देते हैं. तो हमारे टीचर्स के पास हेल्थ कार्ड होता है. Oh wow. ताकि आप उसके पास मेजर समस्या यही आ सकती है कि उसकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए या वो खुद बीमार हो जाए, तो उसके प्रोफेशन में दिक्कत. तो हम जब तक वो हमारे स्कूल में रहते हैं उनके पास एक हेल्थ कार्ड है जिनके पास जिसमें उनको इंश्योरेंस मिलता है, उनको टर्म इंश्योरेंस मिलता है साथ में. ठीक है, उनको हम बाहर लेकर के जाते हैं, टूर्स कराते हैं, एक्सपोजर विजिट्स करवाते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग्स करवाते हैं. तो ये जब एज अ पूरा पैकेज हो जाता है तो किसी भी टीचर को जो शहर में भी पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा पर्क्स यहाँ पे मिल रहे होते हैं. दैट्स वाई अ लॉट ऑफ गुड टीचर्स जॉइन अस. और इस वजह से हम लोग क्लासरूम में डिलीवरी बहुत अच्छी कर पाते हैं. आपकी क्वालिटी एनहांस होती है. बहुत. That's amazing. And the best part about Kograd that you guys got aired on Shark Tank, right? And you got an investment from 3 sharks. And one more thing that Ritesh Agarwal highlighted you guys as OYO for schools. Yeah. Right? So that's a very great framing, by the way. Tell us about the experience at Shark Tank and how did that impact the journey of Kograd? So, तो शार्क टैंक खुद में बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस है. दे हैव अ वेरी वंडरफुल टीम. लाइक कुडोज टू सोनी एंड द कंप्लीट शार्क टैंक टीम. दे आर वेरी एमिकेबल. ठीक है, क्योंकि हम लोगों के लिए पहली बार वो स्टूडियो सेटअप, फिल्म सिटी देखना था. नर्वसनेस तो होती है, ऑब्वियसली होती है. तो दे वर वेरी एमिकेबल. उन्होंने बहुत साथ दिया हमारा. शार्क टैंक पे फीचर होने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ हुई वो हुई वैलिडेशन. जब आप कुछ भी कर रहे होते हो, सपोज आई एम राइटिंग पोएम, आई एम राइटिंग स्टोरी, वी आर बिल्डिंग लाइक दिस स्टार्टअप, मैं कोई मूवी बना रहा हूँ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है वैलिडेशन कि कितना लोगों को समझ में आ रहा है, या कोई हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ इंसान इसको बोल दे कि हाँ अच्छा है. सो जितने भी फॉलोअर वाली जनता होती है वो धीरे धीरे आ जाती है वहाँ पे.
तो जब हम शार्क टैंक पे आए तो हमको मिला बहुत मास स्केल का वैलिडेशन और मास स्केल का एडवर्टीजमेंट। साथ ही साथ में जितने भी हमारे हर्डल्स थे या जो हमें हर जगह पे खुद को प्रूव करना पड़ता था, वो हमारे लिए चैलेंजेस काफ़ी सॉर्ट हो गए। तो कई सारे लाइक थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैव रीच्ड आउट टू अस। लास्ट ईयर हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम लोग सबको एंटरटेन कर सकें। दिस ईयर उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्कूल इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। दैट्स अमेजिंग। कि भले ही मान लीजिए मैं सारे स्कूल्स को अडॉप्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक स्कूल में 40-50 लाख का खर्चा होता है मेरा, बट मैं कुछ 100 स्कूलों को गाइड ज़रूर कर सकता हूँ कि हम ऐसा कोग्रेड में क्या खास करते हैं जो आप अपने स्कूल्स में करिए, आप भी बेहतर कर पाओगे, एंड दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस साल लगभग हमारे पास कुछ 1000 के आसपास एप्लीकेशन आए थे, एंड टिल नाउ वी हैव शॉर्टलिस्टेड 51 स्कूल्स। वैसे हमने 50 का टारगेट रखा था, बट इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है कि शायद हमको 100 तक पहुंचना पड़े। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो वो चीज़ हुई। फिर शार्क्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो आपने बात बोली कि रितेश सर ने हाईलाइट किया था कि वी आर ओयो फॉर स्कूल्स। ओयो ने क्या किया, प्रॉपर्टीज अवेलेबल थी, अबैंडन्ड प्रॉपर्टीज को लीज आउट टू होटल्स, राइट। हाँ, तो उन्होंने उसको फंक्शनल बनाया। एक नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट को रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट किया। लगभग सेम फिलॉसफी पे हम भी काम कर रहे हैं, बट उन्होंने होटल्स के साथ किया, हमने स्कूल्स के साथ किया। वहाँ पे भी ओनर को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे भी ओनर को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे भी कस्टमर को फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि मैं किसी शहर में जाता था तो होटल ढूंढते ढूंढते 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता था, ऑटो वाले के साथ घूमते रहता था। वहीं पे अभी क्या है, ऐप पे सर्च किया, ट्रस्ट के साथ गया। सेम गोज विद स्कूल्स के साथ। कौन सा स्कूल बेहतर है, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। तो हमने कोग्रेड स्कूल्स बनाए, एक्सेसिबल हुए उस चीज़ों के साथ। So it's a very good. So these are some amazing things that you've just listed out to us, and most importantly, you mentioned about Medha AI, right? So you're doing great with it, but most importantly, parents का concern रहता है कि कई बार आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ पे इतना ध्यान दे लेते हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं दे पाते। सो हाउ इज कोगरा गिविंग दैट रीअश्योरेंस? अगर आप देखेंगे तो हमारा कोर फोकस ही क्वालिटी एजुकेशन पे है, क्योंकि अगर हमें इंफ्रा पे ध्यान देना, इंफ्रा बनाना सबसे आसान काम। मेरे पास पैसा है, मैंने ज़मीन ली, मैंने उस पर एक स्कूल खड़ा कर दिया, बट बिल्डिंग इज़ नॉट द की फैक्टर कि जहाँ से आप कितनी क्वालिटी एजुकेशन देते हो ये निर्धारित होता। तो हम लोगों ने तो हमारा लाइक 10% ध्यान होता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि वो CBSE की गाइडलाइंस या स्टेट की गाइडलाइंस फॉलो कर दे, उतना बेयर मिनिमम होना चाहिए वहाँ पे। लेकिन जो टीचर है, जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन है, वो टॉप नॉच क्वालिटी का होना चाहिए। सो उस चीज़ पे हम बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हमने बात की कि हम अबैंडन स्कूल्स को लेकर वी आर क्रिएटिंग देम इनटू स्कूल्स, हाउ इज अ स्कूल गेटिंग एफिलेटेड अंडर सर्टेन बोर्ड? इज इट अ स्टेट बोर्ड, इज इट अ CBSE बोर्ड? लाइक बच्चों को कैसे पता होगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स को कैसे पता होगा कि वो एक पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे तो रिसेंट में ग्लोबली ट्रेंड चल रहा है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। लगभग सब, अगर मैं मान लीजिए केन्या में हूँ तो मैं जो 5th क्लास में पढ़ रहा हूँ तो इंडिया का बच्चा भी लगभग सेम स्टैंडर्ड पढ़े। इंडिया की ही बात कर लेते हैं, इंडिया में भी इस पर काफ़ी सारी पहल चल रही है। 8th क्लास तक कौन सा बोर्ड है बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि जो आपका फ्रेमवर्क रहने वाला है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर ही रहेगा। आपके चैप्टर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि कोई 7th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दे, कोई 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट सारे पढ़ाए जाने, जो लर्निंग आउटकम अचीव होने, वो सेम रहने वाले हैं। तो जो कोई भी स्कूल बिल्डिंग हम लेते हैं, वो क्योंकि स्कूल था इसका मतलब है कहीं ना कहीं से एफिलिएटेड रहा होगा। स्टेट से एफिलिएटेड हो सकता है, CBSE से एफिलिएटेड हो सकता है, ICSE एफिलिएटेड हो सकता है, बट हमको पढ़ाना तो उसके अंदर लगभग सेम कॉन्सेप्ट ही है। 8th तक में बोर्ड उतना ज़्यादा मायने रखता नहीं है, क्योंकि आप सिमिलर पैटर्न की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हो। 9th क्लास से आपका बोर्ड आ भी जाता है तो ज़्यादातर बोर्ड अब NCERT पढ़ाने लगे हैं, ठीक है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैटर्स, ठीक है।
इंग्लिश मीडियम स्कूल या हिंदी में, जनरली एक मिसकंसेप्शन है कि अगर स्टेट बोर्ड का है तो वो हिंदी मीडियम होता है, सीबीएसई है तो वो इंग्लिश मीडियम होता है। आप स्टेट बोर्ड में भी मीडियम इंग्लिश चुन सकते हो, That's your choice. हाँ, that's your choice. आप सीबीएसई बोर्ड में भी मीडियम हिंदी चुन सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका कौन सा बोर्ड है क्या मैटर करता है। अभी लगभग आप एनसीईआरटी के अराउंड, एनसीएफ के अराउंड वही सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे होते हो, तो आप उसको कितना बेहतर कर पा रहे हो वो मैटर करता है वहाँ पे। Absolutely. And could be the next billionaire or somebody who will be a revenue generator could be sitting in a government school that you have created, and it's a co-grad school actually now. And what is the gap that you see between him or her becoming a billionaire, their future, and where they are today? मतलब बिजनेस का बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसके लिए आपको पैसा मिलता है, सो आप उससे अपना बिजनेस बनाते हो। बिल्कुल, ठीक है। यू लुक अराउंड द स्टार्टअप्स जो शार्क टैंक पे आते हैं, जो आप जनरली देख पाते हो, वो ऐसे लोगों ने बनाए जो शहर से आते हैं, जिन्होंने शहरों में पढ़ाई की, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसके लिए लोगों ने उनको पैसा दिया और फिर वो बिलियनियर बने। इफ वी एट कोग्रेट आर एबल टू मेक स्टूडेंट एबल इनफ कि वो अपने गांव के आसपास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, उसके अराउंड पे स्टार्टअप्स क्रिएट कर सके, उसके अराउंड पे जॉब्स, मल्टीपल थिंग्स दैट दे कैन डू, तो डेफिनेटली दे कैन बिकम अ बिलियनियर। इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। एब्सोल्युटली। आपको बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए आपको कोई पैसा देगा। सो वी आर लुकिंग एट वेरी लार्ज विजन कि गाँव से आने वाले जो कोग्रेड स्कूल में या इवन किसी भी स्कूल में पढ़ रहे लोग हैं, जहाँ पे टीचर्स बहुत मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड दे आर गोइंग टू बी द बिलियनर्स ऑफ फ्यूचर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब लोग फाउंडर्स की जर्नीज देखते हैं, तब वो सिर्फ द ग्लैमर दैट दे सॉ इन द शार्क टैंक, या फिर अभी जो नंबर्स आप बाहर निकालते हैं वो, राइट, यू नेम्ड आउट ऑल द स्कूल्स, ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, बट what is something that happens behind the glamour? Who is the founder? Are there setbacks, and are there days where you actually think of giving up? Yeah, there are multiple days. You're being honest. अभी आप जैसे जर्नी स्टार्ट करोगे तो the curve goes like this, you go up like this, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है शुरुआत में, देन एकदम से डाउनफॉल चालू होता है, फिर आपको लगता है कि अभी ये क्या चल रहा है, टीम मेंबर कोई छोड़ के चला जाएगा, पैसा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, किसी क्लाइंट से कोई कमिटमेंट थी तो वो पूरी नहीं हो पाएगी। सो देयर इज़ अ वैली ऑफ सॉरो जिसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद अगर आप वो वैली ऑफ सॉरो क्रॉस कर लेते हो, देन इट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसके बाद आपकी। तो वी आर लाइक जनरल ह्यूमन बींग्स, हमें सेम इमोशंस होते हैं सारे, ठीक है। एक जो अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी फाउंडर्स में, दे आर हसलर्स, उनको मज़ा आता है, ठीक है। कोई फाउंडर आपको खाली बैठे हुए दिखेगा नहीं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मतलब फाउंडर होने के लिए थोड़ा सनकी होना ज़रूरी है। हाँ, उसको आप जनरल लोगों की भाषा में सनकी बोल सकते हैं। लाइक हमको ऐसा वो मेडल टाइप लगता है कि अच्छा कोई तो पकड़ पा रहा है उस चीज़ को। तो यू आर अ हसलर, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, ठीक है। वो अपनी टीम को भी उसी तरह से लेकर के चलते हैं, दे आर टीम प्लेयर्स, ठीक है। टीम को कभी दिखाया है दैट देयर वाज दैट डार्क वैली दैट यू वेंट थ्रू? टीम भी होती है ना उस डार्क जो आगे आने वाले लोग हैं वो शायद उतना ना देख पाए, जैसे हमारे एग्जांपल में लाइक फाउंडिंग टीम होती है उसमें। हाँ, फाउंडिंग सब उसमें आपको लोग छोड़ छोड़ के जाते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। बट देयर इज़ लाइक दिस, जैसे हम लोगों के साथ एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे, जब हमने स्कूल्स खोले थे तो गांव में स्कूल्स थे, गांव में रहने के लिए आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है, बिजली नहीं आती, पानी है जो है सो, तो हम लोग स्कूल्स में रहना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग बड़ी है। शुरुआत में आपके पास 200-250 बच्चे आएंगे, तो हम 1-2 कमरे लेकर के उसको कन्वर्ट कर लेते थे कि वहीं रहेंगे। मैं रहा हूँ, एक स्कूल है जो खेतों के बीच में बना हुआ था, बहुत दूर था गाँव से, तो खेतों के बीच में बना हुआ था, एक कच्ची रोड वहाँ पर आती थी। तो इवन वहाँ शुरुआत के 1 साल तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, सोलर लगा हुआ था, तो सोलर के भरोसे आपका जो चलता था वो पूरा स्कूल।
तो आप पानी बरस रहा है या आपको खाना खाना है, तो आपको तमाम सारे चैलेंजेस वहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। बच्चों के आने से पहले आपको जागना है, पूरा रेडी हो जाना है, ठीक है। फिर बच्चों के जाने के बाद आपको पूरा स्कूल क्लीन करवाना है जो बंदा आएगा। फिर एट द सेम टाइम हमारे पास स्कूटी होती थी, क्योंकि गाँव में आप सब जगह कार लेकर के जाना पॉसिबल नहीं है, और इनिशियल डेज में स्कूटी वॉज अ वेरी इकोनॉमिकल थिंग फॉर अस। स्कूटी आप कहीं पर भी लेके जा सकते हो। तो स्कूटी से जा कर के हर मतलब आप मान लीजिए एक स्कूल लगभग 40 से 50 गांव को कवर करता है आसपास के, ठीक है। तो आप उन 50 गांव में जाओगे, हर घर पे मिलोगे जा कर के, ठीक है। पोस्टर्स तक हमने खुद लगाए हैं। कई बार होता है ना आपके साथ 2 ही लोग जा रहे हैं स्कूटी पे, बिल्कुल तो बेसिक फाउंडर मेहनत, तो वो पोस्टर्स भी आप लगाओगे। ओला ने भी शुरुआत में अपने पैम्पलेट्स बांटे, तो इट इज़ लाइक वेरी बेसिक थिंग। आप मेरे को आज भी करने को बोलोगे तो हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। Because you have risen from that scratch. Wow. हमारे टीचर्स लाइक, तो आप जब आपकी टीम वो चीज़ कर रही होती है ना, तो आपके एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आती है उनके लिए कि इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट इज़ नीडेड टू बी डन। सो इट इज़ वेरी वेरी लाइक थ्रिलिंग टू बी अ फाउंडर। बट मैं रियरली ही किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करो। अगर आपको सुकून भरी जिंदगी चाहिए तो लाइक रेगुलर जॉब, MNC, go for an MNC. आप चाहते हो कि आपकी पर्सनल जिंदगी सॉर्टेड बनी रहे, ठीक है, फैमिली से बातचीत होती रहे, तो आप रेगुलर कोर्स। That's the dark side of being a founder, but it's actually rewarding as well. Then you have a co-founder as well, right? Usually co-founder and founder का relationship is related to a marriage. So how do you guys manage it up, and have there been times where you actually wanted to burst each other's heads? देखिए ऐसा होता है कि आप देयर इज अ प्रोसेस कि मान लीजिए मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूँ या कुछ करना चाहता हूँ, तो उससे पहले हमको ब्रेनस्टॉर्म करना है। हम लोग जनरली एक प्रिंसिपल हम दोनों ही फॉलो करते हैं। सपोज आपको फाउंडर हो, आपने मेरे को कोई आइडिया पिच किया, तो मेरा पहला रिस्पॉन्स आएगा कि बकवास है, ठीक है। नाउ कन्विंस मी कि अच्छा है, ठीक है। तो वो अगर आप कन्विंस करें तो आर्ग्यूमेंट होने वाला है, उससे हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना कम कर देंगे या हमारा भरोसा खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट एक बार वो पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई और हम किसी डिसीजन पे पहुंच गए, फिर वी बोथ आर ऑन सेम पेज। वो आपका म्यूचुअल गोल वही होता है ना कि ब्रांड अच्छा चलना चाहिए, एंड जो हमारा विजन है वो आगे बढ़ना चाहिए, राइट? सो वो आप अटेन कर लोगे तो वो आर्ग्यूमेंट्स भी हो तो भी चलेगा। दैट इज अ जनरल, दैट्स अ प्रोसेस। आप किसी चीज़ पे डिस्कशन नहीं करोगे, आप उसके प्रोस कॉन्स नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि फिर कल को आपके सामने जब चैलेंजेस आएंगे, यू वुड बी ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड हाउ डिड यू फाइंड योर को-फाउंडर? लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टार्टिंग ऑफ नाउ, लाइक 21-22 साल के बच्चे जो नए नए फाउंडर्स बन रहे हैं, दे वांट को-फाउंडर्स बट दे हैव दिस रियली डिफिकल्ट टास्क ऑफ फाइंडिंग वन। सो हाउ डिड यू फाइंड वन? अगर आप देखेंगे तो जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो आई एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड स्टार्टेड इट। हमें फाउंडर को फाउंडर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता था। सौरभ ज्वाइन लेटर, है ना, एज अ मैनेजर। अच्छा, सौरभ ने ज्वाइन किया, बट फिर वो टीम को अपना अपना समझ में आता गया कि अच्छा ये एंटरप्रेन्योरशिप हमारे बस का नहीं है, तो धीरे धीरे सबने अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। सौरभ एंड आई कंटिन्यूड कि अच्छा इसको और अच्छा बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके को फाउंडर या आपकी फाउंडिंग टीम के साथ, दैट इज़ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट आपको डे 1 पे किसी पे भी नहीं आता, ठीक है। अगर आप पहली बार मिले हो तो ट्रस्ट धीरे धीरे डेवलप होता है, अलग अलग इंसिडेंसेस के साथ डेवलप होता है। तो उसके लिए आपको टाइम बिताया हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली आप जो फाउंडर्स देखोगे वो दोस्त होते हैं, ठीक है, भाई होते हैं, दोस्त होते हैं, स्पाउसेस होते हैं, ठीक है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम बिताया हुआ है। तो आप फाउंडर्स अगर आपको ढूंढना है तो आपका एंट्री एग्जिट मैकेनिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आप किसी को लेकर के आइए, एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज होनी चाहिए जहाँ पे उनके कुछ काम हैं, लेट देम डू। अगर वो बहुत अच्छा करते हैं, है ना, आपको लगता है कि अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ऑफर देयर शेयर।
Wow, that's amazing. And that's great advice. So now it was great, the entire podcast, but this is my favorite part of the entire podcast called Rapid Fire. And you'll have to answer one by one. So my first question from Rapid Fire is, one startup myth you wish people would stop believing. कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है. That was so honest. And have you ever thought of quitting Kograd? Yes or no? नो क्विटिंग कोग्रेड कभी नहीं, बट हाँ आप जो अलग अलग आइडियाज या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उस दौरान पे होता कभी. What was one biggest challenge while building Kograd? बिगेस्ट चैलेंज वाज कन्विंसिंग द पेरेंट्स. Oh wow, wow. That is wow. That this was not expected. I expected something जो company में हुआ होगा and all, but you have your own challenges as a founder. Wow. इंसान ही है ना हम भी. Great. One word that describes India's education system right now. It is evolving. Okay. One lesson entrepreneurship taught you that college could never. Winners make the rules, teachers teach the rules. Wow, loving this. One message for every student who is watching this. ट्राई करके देखो, हो जाएगा. Got it. What do you want Kograd's legacy to be? We are going to be Tatas of education. Wow, great. And my final question. Complete this sentence. The future of India depends on. The future of India depends completely on what kind of education that we are going to give to the children who are in schools right now. That's so significant, and I love the rapid fire part. It was awesome. But the entire podcast, it was very informative, and I think हर किसी को ये podcast देखनी चाहिए in order to understand rural education system as well. Because I think urban has been so much in news and have been highlighted, but rural is a very major part of India today, and वो बहुत कहीं ना कहीं neglected रहा है in terms of government as well, and for the people who are part of NGOs as well. Kograd is doing great. Congratulations. And this vision, I hope you achieve all those visions and all the things that you've planned out for Kograd. Thank you so much for sitting down for this podcast. It was absolutely an honor hosting you here. Thank you, Sonali. Thank you very much.